السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. پولیس تھانہ ماڈل ٹاؤن بورے والا میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اہم کامیابیاں. اسد عرف لکی موٹر سائیکل چور گینگ کے 3 ممبران گرفتار. 19 موٹر سائیکل برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دی. اے ایس پی بورے والا عزیز احمد کی پریس کانفرنس. گوجرا سبزی منڈی میں لگا ہوا کرونا واک تھرو گیٹ شہریوں کے لیے درد سر بن گیا. گیٹ کی ہر چیز ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی. انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی. وہاڑی میں حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کے عوام کو رمضان المبارک میں ریلیف پہنچانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. ماہ رمضان شروع ہوتے ہی دکانداروں نے سبزیوں اور فروٹس کے ریٹس میں خود ساختہ اضافہ کر دیا. 100 روپے فی کلو میں فروخت ہونے والے لیموں 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگے. ننکانہ صاحب میں محکمہ اوقاف کی مبینہ ملی بھگت سے شہر بھر میں ناجائز تعمیرات کا سلسلہ نہ تھم سکا. سرکاری اراضی پر ناجائز تعمیرات پر وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ کا نوٹس اور سکھ برادری کا احتجاج بھی رائے گاں. اہل علاقہ کا وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین اوقاف ڈاکٹر عامر احمد سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. وہاڑی کی تحصیل میلسی تھانہ میرا پور کی حدود میں زمین ہتھیانے کے لیے بااثر ذمہ دار کے غنڈوں کا غریب محنت کش پر بہیمانہ تشدد. ظالم درندے غریب شخص کو الٹا لٹکا کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے. پولیس مقدمہ درج کرنے سے انکاری. اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. سراجیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جنڈاوالا کی جانب سے کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے 400 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا تھا اور اب رمضان المبارک کے مہینے میں 100 سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. ایس پی انویسٹیگیشن طارق محمود کی ڈی ایس پی سرکل ہارون آباد کے دفتر میں پریس کانفرنس. پولیس تھانہ سٹی ہارون آباد کے ایس ایچ او سجاد احمد کی سربراہی میں بر وقت اور بڑی کارروائی. مریدکے میں ماں کے ہاتھوں جلائے جانے والے نوجوان کی نعش جی ٹی روڈ پر رکھ کر ورثاء کا احتجاج. مقتول عاصم کے ورثاء کا ملزمہ اور اس کے ساتھی گرفتار کرنے کا مطالبہ. مقتول عاصم کو 3 روز قبل گھر کی دہلیز پر پیٹرول چھڑک کر جلا دیا تھا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بولیٹن کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف. بیورو چیف محمد اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق بورے والا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کی زیر قیادت وہاڑی پولیس نے تھانہ ماڈل ٹاؤن کے علاقے سے موٹر سائیکل چوری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث اسد عرف لکی 3 رکنی گینگ کے 3 ممبران محمد یاسین، محمد اظہر اور سرغنہ اسد عرف لکی کو گرفتار کر کے 19 عدد قیمتی موٹر سائیکلز برآمد کر کے چابیاں اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی. بورے والا کے علاقہ میں موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان نے ہنگامی طور پر ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے اے ایس پی بورے والا عزیز احمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن بورے والا شمون جویا پر مشتمل ٹیم تشکیل دی تھی، جنہوں نے ٹیم ممبران مظہر فرید اے ایس آئی، محمد وقاص اے ایس آئی اور دیگر کے ہمراہ جدید طریقہ تفتیش کے ذریعے شب و روز کی محنت کے بعد ملزمان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ ان کے قبضے سے مال مسروقہ 19 موٹر سائیکلوں کی برآمدگی کو بھی یقینی بنایا. اے ایس پی بورے والا عزیز احمد نے پریس کانفرنس کے دوران تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ملزمان محمد یاسین اور مظہر چک نمبر 19 WB کے رہائشی جبکہ اسد عرف لکی چک نمبر 435 EB کا رہائشی ہے اور دکانوں، مارکیٹوں اور گھر کے باہر موٹر سائیکلوں کی ماسٹر کیز کے ذریعے کھول کر
पैदल मोटरसाइकिल आगे ले जाते ताकि शोर शराबा ना हो और फिर स्टार्ट करके फरार हो जाते। लेकिन विहाड़ी पुलिस ने पेशावराना सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ASP बूरेवाला अजीज़ अहमद ने मजीद कहा कि विहाड़ी पुलिस अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। पुलिस थाना मॉडल टाउन बूरेवाला ने रवा माह जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ अहम कामयाबियां हासिल की हैं और इस सिलसिले में 8 मुजरिमान इश्तिहारियों, 10 मुनशियात फरोशों और 5 असलहा नजायज़ रखने वालों को गिरफ्तार करके 5130 ग्राम चर्स, शराब, 5 पिस्टल और दर्जनों गोलियां बरामद की। जबकि पतंगबाजी जैसे जानलेवा खेल के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 15 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके 520 पतंगे और 70 डोर की चरखियां बरामद की। मोहम्मद नासिर सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा में हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस वॉक थ्रू गेट सब्जी मंडी में लगा तो दिया, लेकिन ये गेट शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काफ़ी दिनों से ये गेट टूट फूट का शिकार हो गया। हर चीज़ नकारा होने से मुल्की ख़जाने को लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। मकामी इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। कोई भी आला अफसरान पूछने वाला नहीं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मैडम आमना मुनीर से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गोजरा की सब्जी मंडी में लगा हुआ वॉक थ्रू गेट को सेट करवाया जाए ताकि शहरी बढ़ती हुई कोरोना वायरस जैसी बीमारी से महफूज रह सके। अब्दुल्ला मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया के आवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ पहुँचाने के दावे धरे के धरे रह गए। माह रमज़ान शुरू होते ही दुकानदारों ने सब्जियों और फ्रूट्स के रेट्स में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। रमज़ान से एक दिन कबल 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाले लीमू 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगे और इफ्तारी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खजूर की कीमत भी 4 गुना बढ़ा दी गई है। सब्जियों और दीगर फ्रूट्स की कीमतें भी दुगनी कर दी गई हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और ज़िला इंतज़ामिया खामोश नजर आती है। शहरियों का कहना है दूसरे ममालिक में रमज़ानुल मुबारक में अशियाए खुरोनोश सस्ती कर दी जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाकर अवाम पर जुल्म कर दिया जाता है। फलों और सब्जियों की कीमतें सुनकर गरीब आदमी के लिए फल और सब्जी खरीदना भी सुहाना ख्वाब बन चुका है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करे। मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब शहर और गिरदोनवाह में महकमा औकाफ की कीमती अराजी पर बासर अफराद ने अरसा दराज से महकमे के अफसरान, पटवारियों और दीगर अमले की मुबैना मिली भगत से कब्जा करना शुरू कर रखा है। चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने सरकारी अराजी पर उन नाजायज़ तामीरात पर नोटिस भी लिया था, जबकि सिख बिरादरी की तरफ से उनके रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के नाम से मंसूब हैं। अराजी पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज भी किया गया था, मगर इसके बावजूद नाजायज़ तामीरात का सिलसिला जारी है और शहर में भी मुकद्दमात पर बासर अफराद दिन दहाड़े सरकारी अराजी पर कब्जा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महकमा औकाफ का अमला मुबैना तौर पर इन कब्जा ग्रुपों के साथ मिला हुआ है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर से मामले का फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जफर इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी के इलाके तहसील मेलसी थाना मीरापुर में एक और दिलखराश वाक़या सामने आ गया, जहां पर थाना मीरापुर के इलाका हरदोगम के रिहायशी गरीब मेहनत कश मुलाजिम हुसैन को ज़मीन हथियाने के लिए बाअसर ज़िम्मेदार के गुंडों ने, जिसमें हुसनैन, अजहर सरफराज, मलिक सगीर, मोहम्मद इकबाल और दीगर ने उठाया और अपने मवेशियों के बाड़े में ले जाकर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जालिम दरिंदे गरीब मेहनत कश को उल्टा लटका कर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को गर्म लोहे से जलाते रहे और हालत गैर होने पर घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। तशद्दुद के दौरान गरीब मेहनत कश के हाथ भी टूट गया। बाअसर जगीदारों के खिलाफ गरीब मेहनत कश थाना मीरापुर पहुंचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना ही गवारा नहीं समझा। मुतासिरा मेहनत कश ने बीवी बच्चों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बासर मुलजिमान उससे 1 एकड़ ज़मीन ज़बरदस्ती हथियाना चाहते हैं, जबकि पुलिस कार्रवाई से साफ इनकारी है। मुतासिरा ने वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुक्काम से नोटिस लेते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है।
भक्कर से ब्यूरो चीफ जुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक सिराजिया वेलफेयर फाउंडेशन जंडावाला की हमेशा की तरह फलाही कामों और इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए आगे बढ़ रही हैं। इस मुबारक महीने में सिराजिया वेलफेयर फाउंडेशन गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद के शाना बशाना खड़ी है। जैसा कि कोरोना वायरस की और लॉकडाउन की वजह से गरीब तबके में 400 ख़ानदानों में राशन तकसीम कर चुकी है। सिराजिया वेलफेयर फाउंडेशन जंडावाला यूथ को इलाके भर के लोगों ने खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुफ्ती आमिर शफीक ने इस मुश्किल घड़ी में हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं, मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील की जाती है। इंसानियत की खिदमत ही हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। इलाके भर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने हालात के हाथों मजबूर होकर अपनी हज़ारों ख्वाहिशात का गला घोंट देते हैं, और ऐसे लोगों से प्यार करना और उनकी मदद करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। हारूनाबाद से शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन बहावलनगर पुलिस तारिक महमूद ने डीएसपी सर्कल हारूनाबाद चौधरी शाहिद परवेज़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि डीपीओ बहावलनगर कुद्दूस बेग ने शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर काबू पाने और वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सर्कल शाहिद परवेज़ की ज़ेरे निगरानी पुलिस टीम तश्कील दी, जिस पर पुलिस थाना सिटी ने एसएचओ सज्जाद अहमद सिंधु की सरबराही में शबो रोज़ मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाब कार्रवाई के दौरान शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले बदनामी ज़माना मोटरसाइकिल चोर फैसल को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्ज़े से लाखों रुपए मालियत के मसरूका मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली। एसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक महमूद ने एसएचओ हारूनाबाद सब इंस्पेक्टर सज्जाद अहमद सिंधु और उनकी टीम के लिए तारिक महमूद ने एसएचओ हारूनाबाद सब इंस्पेक्टर सज्जाद अहमद सिंधु और उनकी टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। बाद अज़ा एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बरामद शुदा मोटरसाइकिल्स मालिकान के हवाले कर दी। मुरीदके से मोहम्मद ज़िशान की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने आसिम के घर किसी फ़र्द की बजाय खुद मुद्दई क्यों बनी। आसिम ने नज़ई बयान में इल्ज़ाम लगाया कि उसकी वालिदा ने उसे साथी मर्द के साथ मिलकर आग लगाई। मुजाहिरीन का पुलिस पर मुलजिमों के साथ सासबाज का इल्ज़ाम, मुलजिमा फ़रार है, जल्द पकड़ लेंगे, पुलिस की यकीन दहानी। आरिफवाला में लॉकडाउन की सताई बेरोज़गार आवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। आम मार्केट्स की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, जिसके बाइस शहरी मायूसी का शिकार हैं। इस पर बात करेंगे आरिफवाला में मौजूद अपने नुमाइंदे ज़रीन सज्जाद से। जी ज़रीन सज्जाद, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश महंगी होने पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल दिखाई देता है? मैं इस वक्त तहसील रोड पर कायम एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एशिया खुर्दोनोश की कीमतों की बात की जाए तो जाल चना का रेट आम मार्केट में 140 रुपये है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में 160 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। सफ़ेद और स्याह चने आम मार्केट में 110 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 125 और 155 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह खुश्क मसाला जात की कीमतों में भी मार्केट की निस्बत कहीं ज़्यादा है। मशरूबात जो हैं वो भी फ़ी बोतल 60 से 70 रुपये यूटिलिटी स्टोर पर महंगी फ़रोख्त हो रही है। एक चीनी वाहद आइटम है जो जहाँ पर बाज़ार की निस्बत सस्ती मिल रही है, मगर चीनी देने के लिए यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया ने अनोखी शर्त रखी है। जो शहरी कम से कम यहाँ पर 500 से ज़ायद की ख़रीदारी करेगा, सिर्फ उसी शख्स को चीनी दी जाएगी। इस शर्त के बगैर कोई शख्स यहाँ से चीनी ख़रीद नहीं सकता। शहरी यहाँ से काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने रमज़ान में एशिया खुर्दोनोश पर अगर सब्सिडी दी है तो वो नज़र भी आनी चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा 44 न्यूज़ ज़रीन सज्जाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं खुशाब से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल और अनायत खोखर का अचानक कट्टा सगराल का दौरा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ खुशाब मलिक अब्दुल करीम से। जी मलिक अब्दुल करीम, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब राशिद इकबाल और इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद अनायत खोखर का अपनी टीम के साथ कट्ठा और पैल में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे और कुछ मुनाफाखोर दुकानदारों के खिलाफ थाना कट्ठा सगराल में मुकदमात भी दर्ज कराए और कुछ दुकानदारों को नकद 2000 रुपये जुर्माने भी किए। इनके हमरा मलक राब नवाज पटवारी और ज़ियारत खान गिरदावर भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। 44 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलिक अब्दुल करीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए
44 نیوز، اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔